Okay, so good afternoon. This is our first class, that is the orientation class on the examination CDS, that is Combined Defense Services. Okay, so this is the very first class because I personally believe that before we begin the course, it's quite important for us to understand what kind of exam are we targeting, what kind of services are we actually aspiring for, what kind of services are the defense services, and what is expected out of us. एग्जाम की तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम एग्जाम को अच्छी तरह से समझें, उसी से हम क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, कितना पढ़ना पड़ेगा, कहाँ हम लैंड करेंगे फ्यूचर में, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हो जाती हैं. सो द एग्जामिनेशन इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. Okay, so as you can see, these are some of the pictures that I would like to introduce while beginning my discussion on this subject, that is Combined Defense Services exam. अब इसके अंदर आप देख सकते हो, you can see it's the Indian Military Academy. जब आप वहां पर ट्रेनिंग के बाद पास आउट होते हैं, तो this is what the passing out looks like. These are some of the outstanding cadets from the Indian Military Academy, and these are some of the people who have qualified for the National Defense Academy, for the Indian Armed Forces from Punjab. All these people you can see are from Punjab. Each one of them is from Punjab. All these people that you can see are from Punjab. So Punjabis, especially, you can see how many Sardars are there. So all these people, I know them personally as well, and they happen to crack the exam. And since I am in touch with them, I know what kind of right strategy is required. So this maroon beret that you can see, this maroon beret which you can see, it refers to a para commando. So whosoever is a para commando in the armed forces is going to wear such maroon beret, not the red one, but the maroon one. And the person standing in the middle is also from Punjab. Okay, he belongs to a village not very far away from Amritsar. And these people you can see in the blue uniform, they belong to the Indian Air Force. ठीक है, इन्हीं के अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो हितेश हैं, इफ यू नो, जो हमारे डीआर होते थे, वो भी इसी बैच के अंदर पास आउट हुए थे. ओके, आगे चलते हैं. सो द बेसिक पॉइंट इज, इफ दिस इज व्हाट यू वांट, कि if this is a lifestyle you want to try, then wake up. And by wake up, I mean that it's important that you start the preparation as soon as you can. And if this is not what you want, then also wake up. Decide what you exactly want. You want to do MBA after your engineering is over. You want to pursue GATE examination. You want to pursue some banking examination. You want to pursue civil services or the state services or the defense services. Whatever you want to pursue, it's the time that we wake up and we make ourselves capable up to it. ठीक है, आगे चलते हैं. Right, so the women also can go through this exam of CDS. So ये सिर्फ लड़के नहीं देते, ये लड़कियां भी देती हैं, लेकिन थोड़ा सा fundamental difference होता है. So let's start with this. So what is the mode of exam? ये exam offline ही होता है. Okay? This exam will take place only and only offline. right? आपके हार्ड कॉपी आपको मिलती है एग्जाम क्वेश्चन पेपर की, और आप उसको सॉल्व करते हैं. मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, वो अगर आप बात करते हो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, जो सीडीएस है वो फर्दर आगे कई हिस्सों में डिवाइडेड है. अगर आप बात करते हो आईएमए की, इंडियन मिलिट्री नेवी एयरफोर्स की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो 300. एंड एक और एकेडमी है ओटीए, दिस इज द फोर्थ एकेडमी. ठीक है, ये भी आप आर्मी के लिए जाते हो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए. यहाँ पर 200 मार्क्स. अब ये क्यों 300 और 200 मार्क्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के. ठीक है, ओटीए के अंदर एक पेपर जो मैथमेटिक्स का है वो नहीं होता. सर कौन एलिजिबल है इसके लिए? ये भी एलिजिबल है. ठीक है, आप भी एलिजिबल ओटीए के लिए. गर्ल्स आर ओनली एलिजिबल फॉर ओटीए. दैट मींस द गर्ल्स डू नॉट गिव देयर मैथमेटिक्स एग्जाम. एग्जाम के अंदर मैंने आपको बताया 3 पेपर्स होते हैं, और हर एक पेपर 2 घंटे के लिए चलता है. एवरी पेपर इज देयर फॉर 2 आवर्स. ठीक है, 2 घंटे के लिए हर पेपर जो है वो चलता है. मीडियम एक तरफ इंग्लिश होती है और एक तरफ हिंदी होती है, so that the candidates who are comfortable in either of the language can pursue solving the paper in the language they are comfortable in. And negative marking जरूर होती है. 1/3 mark is deducted for every incorrect response. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है. अब
यहाँ पर हमारे पास मैंने थोड़ा सा टेबल तैयार किया है, आप देख सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, जिनके बारे में हल्का सा देखेंगे आगे जाके। ये 3 एकेडमीज, द फर्स्ट वन इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज फॉर ट्रेनिंग कैडेट्स फॉर परमानेंट कमीशन इनटू द आर्मी, परमानेंट कमीशन, ठीक है, नॉट अ टेम्पररी कमीशन। इंडियन नेवल एकेडमी इज फॉर नेवी, ठीक है, परमानेंट कमीशन। एंड एयरफोर्स एकेडमी इज फॉर इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों एकेडमीज जो है, इनके अंदर आप बेसिकली जा सकते हो, डिपेंडिंग आप जब फॉर्म भर रहे हो तो आप कौन सी प्रायोरिटी भर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर। द फर्स्ट इज इंग्लिश, and in English the paper is going to be of 2 hours. Second paper will be of general knowledge, that will also be of 2 hours, and third paper will be of elementary mathematics, that will also be of 2 hours. Okay, तो ये 2-2 घंटे के 3 पेपर्स होंगे, तीनों के तीनों 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के होंगे, टोटल 300 मार्क्स आप दोगे। शाम हो जाती है, 2 घंटे का पेपर होता है, फिर 1 घंटे की रेस्ट होती है, फिर 2 घंटे का पेपर होता है, फिर 1 घंटे की रेस्ट होती है, फिर 2 घंटे का पेपर होता है। तो इट्स लाइक 6 घंटे और प्लस 2 घंटे की रेस्ट, 8 घंटे लगभग लग जाते हैं। सुबह 9 बजे जाते हैं, इवनिंग में जाके फ्री होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश के 120, जीके के भी 120, मैथमेटिक्स के 100। ओके, मैथमेटिक्स के क्या है 100। ओटीए के लिए भी सेम पेपर आता है, इंग्लिश का पेपर सेम आता है, जनरल नॉलेज का सेम आता है, बट मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो ओटीए वाले नहीं देते। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ ओटीए का देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश देंगे, आप जनरल नॉलेज देंगे, बट आप थर्ड पेपर जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, यानी कि उससे पहले आ जाएंगे, है ना, 2 बजे आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है। अब सर ओटीए का क्या प्रॉब्लम है, ओटीए में ओटीए का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ओटीए जो है यहाँ पर जाते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। ओटीए जो होती है ये फुल लाइफ कमीशन नहीं होती, इसमें आप पहले ही आर्मी जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत सारे ओटीए के ऑफिसर्स भी बाद में परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इट्स शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली। और लड़कियां जो है वो सिर्फ ओटीए में जाती हैं। ओके, अब लड़कियों को बाद में परमानेंट कमीशन आजकल देने शुरू कर दिया उन्होंने। इसमें वही इंग्लिश का एग्जाम होगा और जीके का एग्जाम होगा, थर्ड एग्जाम इसमें नहीं होगा। अब सर चारों अकेडमीज में जाने के लिए अगर एग्जाम सेम है तो क्या फिर उनके मार्क्स क्या डिपेंड करता है? तो देखो, आपकी प्रायोरिटीज जो उन लोगों ने भरी होगी, जितने भी लाख एग्जाम दे रहे हैं, जो उन्होंने मार्क्स अचीव किए, उसके हिसाब से चारों अकेडमीज की अलग अलग कट ऑफ जाती है। सबकी कट ऑफ जो है वो अलग अलग जाती है। यूजली एयरफोर्स की कट ऑफ ज्यादा होती है, आईएमए और आईएनए की कम होती है, और सबसे कम कट ऑफ जो है वो ओटीए की जाती है। ठीक है। सो ऐसा होता है कि जैसे कई लोग जो है अगर सारा नहीं क्लियर कर पाते, लाइक लेट्स अज्यूम वो आईएम नहीं क्लियर कर पाए, तो क्योंकि ओटीए की कट ऑफ थोड़ी कम होती है तो वो ओटीए क्लियर कर जाते हैं। तो सर इससे इससे मेरे को ये समझ आती है कि लेट्स अज्यूम कि मैंने आईएम में प्रेफरेंस भरी थी, बट अगर मेरे मार्क्स लेट्स से कम आए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप आईएम में नहीं क्लियर कर पाते, बट आप ओटीए के लिए क्लियर कर जाते हैं, ओटीए की एसएसबी दे आते हैं। ठीक है। अब नेचुरल सी बात है, सब चाहते हैं कि परमानेंट कमीशन मिले, तो प्रेफरेंस में ज्यादातर तो वो आईएमए आईएनए एएफए पर भरते हैं। ठीक है। अब हम एक एक सब्जेक्ट की, अब ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया आपको। इज इट क्लियर सो फार? एम आई क्लियर सो फार? एम आई क्लियर? राइट। तो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। जनरल नॉलेज, अब हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। जनरल नॉलेज के हमारे पास है 120 क्वेश्चंस वी हैव, एंड 100 मार्क्स के आएंगे। दैट मीन्स कि हमारे पास कुछ अराउंड 0.83 मार्क्स होते हैं पर क्वेश्चन, एंड टाइम होता है 2 आवर्स। ठीक है। यहाँ पर टाइम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जीके में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट डिफिकल्टी, you are fighting against time. Time is very important. You don't have to solve the question, you have to be very fast in solving the question. अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया, मैं बेसिकली पिछले 3-4 साल के इवैल्यूएट किए क्वेश्चन पेपर्स और ट्रेंड के हिसाब से मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए। वो ग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने देखा कि साइंस के अंदर ना जो जीके वाला पोर्शन है, व्हाट डू आई मीन बाय जीके, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, यू नो मे बी some many questions this time were seen from Indian economy also, और इसके लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि इकोनॉमी भी पढ़ाऊं। पहले मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ाता था बच्चों को, ठीक है, सीडीएस के पेपर के लिए। आई वाज लाइक आप इससे भी, पर इस बार क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चंस बढ़ गए तो इकोनॉमी भी मैं करवाऊंगा, है ना। करंट अफेयर्स हो गए, ये सारी चीजें जो है, इनमें से लगभग लगभग 90 क्वेश्चंस आते हैं, है ना।
और आपकी जो साइंस है, सिंस ना सम बिलोंग टू, मेनी पीपल बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड, बीएससी बैकग्राउंड, तो ये साइंस जो है ना, इट इज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट, इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग पार्ट. All people should do science properly. They should be very thorough with the concept of science. Science is a very scoring part. Okay, so science से अराउंड कई बार 27 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार 25 आ जाते हैं, कई बार 32 आ जाते हैं, तो मैंने एवरेज लग देखा है कि 30 क्वेश्चंस अब लगा कर चले. तो 120 में से 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम साइंस एंड 90 क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरल नॉलेज. ठीक है, जीके और साइंस में से ऐसे होता है. अब साइंस और जीके दोनों देखते हैं. साइंस में से भी लगभग लगभग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स से एक जैसे क्वेश्चन आते हैं, 7, 8, 13 आप देख सकते हो. बायोलॉजी से 7 क्वेश्चंस, फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 13 क्वेश्चंस. तो ये एक एवरेज चलती है, राइट. अगर आप ईयर वाइज भी देखना चाहते हो, तो मैंने 2020 का भी जो दूसरा पेपर हुआ है, वो मैंने अभी नहीं अपडेट किया, वो भी मैं जल्दी अपडेट कर दूंगा. 2020 का जो पहला पेपर हुआ, उसमें लाइक फिजिक्स के जैसे देखो तो 9 क्वेश्चंस थे, केमिस्ट्री के 12 थे एंड बायोलॉजी के भी 9 थे. 2019 का है ना, इसमें 7, फिर 18, फिर 4 बायोलॉजी के, फिर ऐसे 9. तो मालूम पड़ता है कि मेरी केमिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. इस ट्रेंड से क्या पता चलता है कि केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो साइंस में भी अगर सबसे पहले क्या पकड़े तो केमिस्ट्री सबसे पहले पकड़े. ठीक है, बायोलॉजी के कई बार कम हो जाते हैं, तो इन सबकी एवरेज लगाई है मैंने. ठीक है, केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसमें से क्या क्या केमिस्ट्री में भी क्या क्या आता है. केमिस्ट्री में भी देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एटॉमिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, सरफेस केमिस्ट्री आ सकती है, उसके अलावा पीरियोडिक टेबल की चीजें आ सकती हैं, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं. आयनिक बॉन्ड क्या है, डेटिव बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस चीज के साथ हो सकती है. ये सारी चीजें केमिस्ट्री के अंदर आने के चांसेस रहते हैं. मैटर की प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स के अंदर चले जाएं तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, जैसे पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल. इन सारी चीजों की एप्लीकेशंस जो है वो पूछी जाती हैं. न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पूछे जा सकते हैं. ये सारी चीजें जो फंडामेंटल्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बड़े जरूरी हैं हमारे लिए. अब जीके है ना, वैसे तो पूरे पेपर का नाम ही जीके रहता है, बट साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग कर देता है, बिकॉज़ देयर आर सम पीपल हु आर गुड इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बट हु आर नॉट वेरी गुड इन ब्रिलियंट इन साइंस. बट देयर आर मेनी पीपल who are good in science but they have not studied history, geography, Indian polity. For such people science plays a very, it is a pivot, it's a turning point while cracking the exam. आगे हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं, अब आ जाते हैं जीके, जिसमें से मैंने बताया लगभग 90 क्वेश्चंस आते हैं. उसमें से भी आप देखोगे हिस्ट्री में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट हिस्ट्री बहुत तरह की है. इट हैज एंशिएंट, मेडिवियल, मॉडर्न. ऐसे ज्योग्राफी में से भी आते हैं. इकोनॉमी से भी इस बार मैं देख रहा हूँ बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे बीच में थोड़े है ना, इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर से भी आ रहे हैं, पॉलिटी से भी आ रहे हैं. अब करंट अफेयर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप किताबें भारी भारी लाओ और उनके करंट अफेयर्स रट्टा मारो. अगर आप एक अच्छा ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं एंड सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि क्या चल रहा है, कौन सी नदी, कौन सा डैम, क्या थोड़ा हल्का हल्का ध्यान रखते हैं, तो उससे भी आप, अगर लेट्स से 32 करंट अफेयर्स आए हैं 2020 के पहले पेपर में, तो हर साल 2 पेपर होते हैं इसके. अगर 2020 के पहले पेपर में 32 क्वेश्चंस आए हैं, तो उसमें से 8-10 तो आप ऐसे सॉल्व कर जाओगे, जस्ट बिकॉज आप रैंडम न्यूज देख रहे थे या आपने कुछ करंट अफेयर्स वाले चैनल्स फॉलो किए हुए थे. जैसे विद्या बालन ने रिसेंटली कौन सी मूवी के अंदर किरदार निभाया है, तो आंसर वाज शकुंतला देवी. शकुंतला देवी में कौन थे, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ओके, सो एक जस्ट रफ आइडिया न्यूज सुनते रहो, इससे भी करंट अफेयर सॉल्व हो जाते हैं. एंड देन वी हैव पॉलिटी. ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस जो हैं ये टोटल यहाँ से जीके से आते रहे. अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. स्ट्रैटेजी आई गेस मैंने आगे डिस्कस की है. हाँ, ठीक, स्ट्रैटेजी हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी तो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पेपर के बारे में. तो ये हो गया जीके, है ना. अब आगे चलते हैं इंग्लिश के पेपर के बारे में. अब इंग्लिश का पेपर होता है. अब इंग्लिश का पेपर जो है वो 120 क्वेश्चंस का है ना. अगेन सेम 0.83 पर क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 100 मार्क्स होते हैं एंड टाइम इज 2 आवर्स. अगेन इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर आ जाएंगे, सेंटेंस को 4 हिस्सों में रैंडम ऑर्डर में लगा देंगे, कहेंगे इसका सही ऑर्डर क्या होगा. सिनोनिम्स आ जाएंगे, एंटोनिम्स आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे. ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएंगे,
है ना, काफी क्वेश्चन 120 आने होते हैं तो काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी, स्पॉटिंग एरर्स जो है वो आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो है वो आ जाएंगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आ जाएगी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे तरह के जो टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश के अंदर आ सकते हैं। नाउ लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी जो पेपर गया इसका नवंबर में अगर हम बात करें, अगर नवंबर 7 को या 7 को था, तो उसके अंदर इंग्लिश वाज क्वाइट इजी। In order to attempt English, naturally in my classes we definitely do the grammar. मेरी क्लासेस जहां पर मैं पढ़ाता हूँ, हम ग्रामर पोर्शन को आवश्यक करते हैं, जरूर करते हैं, बट ग्रामर के साथ साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग। आप अपनी जनरल इंग्लिश जो है उसको अच्छा सुधारो। आप 120 में से आप देखोगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप 70-80 प्लस क्वेश्चंस तो वैसे ही पार कर जाओगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अपनी जनरल इंग्लिश सुधारी तो आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है। While improving your English, you don't only develop your skills to attempt questions in this paper, you can also sail through a lot many other examinations, and plus it helps you a lot in your SSB. So one of the fundamentals of cracking the forces exam is improving your English. चाहे वो written exam हो, चाहे वो interview हो, English is very, very, very important in the armed forces. Some people live in the misconception that in our interview we can use Hindi. Yes, you can use Hindi in your interview, but the instructor's wording is that if you get stuck in English, you can switch to Hindi, but revert back to English as soon as possible. यदि आप कहीं अंग्रेजी में अड़ जाते हैं, तो आप हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिर कोशिश कीजिए कि शीघ्र अतिशीघ्र आप वापस लौट जाइए अंग्रेजी में। ठीक है, सो द प्राइमरी लैंग्वेज इज गोइंग टू बी इंग्लिश ओनली, सो डोंट लिव इन दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कि हिंदी कैन वर्क। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव फ्रेंड्स हु क्रैक द ऑल 3 एग्जाम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश। कट ऑफ होती है सेक्शनल, उसके लिए आप 25-30 क्वेश्चन वो, मतलब अगर बॉटम लाइन पे भी रहे, थ्रेशोल्ड पे भी क्रॉस करें, तो इंग्लिश से कर जाते हैं। 120 में से 90 प्लस क्वेश्चन के लिए इंग्लिश से ही सही कराते हैं। ओके, they attempt 90-100 questions correct from English alone. आगे चलते हैं, अब आ जाता है मैथ्स, है ना, तो इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव विद अस मैथ्स। मैथ्स के अंदर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, दैट मींस दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। देयर आर सम बुक्स जो रॉन्गली लिख देती हैं, वहां पर भी 120 क्वेश्चंस। कई बुक्स हैं जिन्होंने यहाँ पर भी 120 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, वो फ्लो में 120 120 120, देयर आर 100 क्वेश्चंस। ठीक है, मैथ्स के अंदर सम पीपल जिनका हाथ थोड़े टाइट होते हैं, सम पीपल जो आर वेरी गुड इन मैथ्स। मैथ्स के अंदर भी यू हैव टू सर्च फॉर क्वेश्चंस जो तुम अच्छी तरह से तुम्हें आते हैं। नंबर सिस्टम से देख सकते हो, काफी क्वेश्चंस आए होते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से काफी आए होते हैं, ज्योमेट्री से काफी आए होते हैं। ठीक है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, परसेंटेज, मिक्सचर, टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये सारे जो है डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये डाटा स्टैटिस्टिक्स, इनसे भी कई बार एक दो क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें हम ज्यादातर जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट, सो मैथ्स आ जाता है इसमें, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आ जाते हैं। ठीक है, हम मेंसुरेशन पे काफी फोकस करते हैं, टाइम, स्पीड जैसे चैप्टर्स हो गए, ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, नंबर सिस्टम हल्का सा डिफिकल्ट आता है, कुछ क्वेश्चंस आसान भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी भी आ जाते हैं। सो नॉट ऑल पीपल आर एबल टू डील विद नंबर सिस्टम क्वाइट वेल। ओके, तो ये सारा हम देखेंगे। नाउ लेट्स जंप टू सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस on CDS. You know, once the presentation is over, then you may ask questions, you may shoot to ask questions. How many times the CDS exam is conducted? Now, the best part of the military exams is that even if you failed to perform brilliantly or brightly in one of the exams, you get an opportunity after a few months. You don't have to wait for an entire year. So CDS exam is conducted twice a year. That is for once in February and the other time in November. जो फरवरी में होता है उसे हम कहते हैं CDS 1, जैसे 2020 CDS 2020 आगे 1 लिखा होगा, एंड जो नवंबर में होता है उसे कहते हैं CDS जैसे 2022। अभी जो आने वाला है, ठीक है, उसकी डेट्स निकल चुकी हैं, दैट इज 2021 का 1। ठीक है, वो CDS जो है वो आने वाला है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, डू द एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, जीके एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अकर ऑन द सेम डे इन द CDS एग्जाम? यस,
You have to give all 3 exams on the same day. English होता है 9 to 11, जीके is from 12 to 2, बीच में 1 घंटे का ये ब्रेक दे देते हैं ना, 11 to 12, कुछ खाना पीना हो। एंड जो लड़कियां हैं या फिर जो सिर्फ ओटीए के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं लड़के, वो फिर चले जाते हैं 2, सिर्फ वो रह जाते हैं जिन्होंने मैथ्स भी देना होता है, फिर 3 से 5 आपका मैथ्स होता है, राइट। और फिर उसके बाद इलांटे वगैरह घूमने चले जाओ, ठीक है। व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस? द एंटायर प्रोसेस इज, पहले आप देखो सीडीएस एग्जाम, ठीक है। अगर आप एग्जाम क्लियर करोगे ऑफ आईएमए, आईएनए, एएफए, let's say our this OTA, then you will get the SSB. तो आप SSB तक जो है वो आप एलिजिबल हो। Once you crack the SSB, once you crack the SSB, then you are eligible for your medicals. तो आपका मेडिकल चलता है, वो 5 दिन भी चल सकता है, कई केसेस में तो 3 दिन में भी हो गया, कई केसेस में 10 दिन। मेरे केस के अंदर तो मेडिकल वाज फॉर एज लॉन्ग एज आई गेस मोर देन 10 days. सो मेडिकल के बाद यू स्टिल हैव टू वेट, ठीक है। अभी मेरिट लिस्ट का होता है, ठीक है, मेरिट लिस्ट आनी होती है, उसमें मेरिट लिस्ट, इसके अंदर क्या चांसेस है, द पॉसिबिलिटी ऑफ मेरिट आउट, गेटिंग मेरिट आउट इज लो, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर सीट्स फॉर एग्जांपल 100 हो, आपका रैंक नहीं आ पाया, मेरिट लिस्ट, एंड आफ्टर द मेरिट लिस्ट you become the academy cadet. Once the merit list is out, in a week or two, in a couple of weeks, you will get the joining letter, you will get the joining date, you will join. And now the list is out and people have started, some of my friends have joined IMA lately. So academy cadet आप ऐसे बनते हो. This is the whole process from being an aspirant to being a cadet. ठीक है? And age limit. Okay, अभी हम age limit भी देख लेते हैं. Age limit, for example, हाँ, जैसे एज लिमिट सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर के लिए भी है मेरे पास, 2022 के फर्स्ट पेपर के लिए भी है ना। यहाँ से हमें अंदाजा लग जाता है कि आपकी कितनी एज लिमिट होगी। ओके, तो ये डेट्स मैंने आपको सारी दी हैं, फाइन। अगर कोई भी आदमी ये चीज जानना चाहता है कि उसके कितने अटेम्प्ट्स हैं, तो वो भी बता देता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट एज लिमिट. So by keeping this date into consideration, one gets to know that how many attempts he or she has. It's very important that every aspirant must know how many attempts he has got in all. I know we always are of the feeling that we must crack it in the first attempt, but we have to be practical at times as well. We need to have a clear-cut idea of the fact that how many attempts are with us. Okay, so for example, somebody is born in December 1990, somebody is born on December 1998, so he is eligible to give the exam for IMA, OTA, AFA, INA for 2021 first paper and 2021 second paper. But for 2022, he is not eligible for all these 3 academies. ठीक है, because he is born in 1998 in the month of December, so he will be eligible for these exams. Like वो OTA के लिए eligible होगा for 2022 का पहला पेपर and 2022 का दूसरा पेपर. Now let's talk about the academies that you join. तो academies की अगर हम बात करें तो academies के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो आती है इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ठीक है, यहाँ पर आर्मी की तैयारी की जाती है. देन हमारे पास आती है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है. देन हमारे पास आती है नेवल एकेडमी, आईएनए, बहुत ही, नेवैक भी कहते हैं, नेवैक जिसे कह देते हैं, बहुत ही शानदार एकेडमी है, वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, बहुत ही नई बनी है एकेडमी. एंड फोर्थ आती है हमारे पास ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए, ठीक है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी. तो ये 4 एकेडमीज है ना. ये भी परमानेंट कमीशन की है, ये भी परमानेंट कमीशन है, ये भी परमानेंट कमीशन है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है. जो विमेन है वो भी इसमें जाती है ओटीए के अंदर. तो ये 4 अकेडमीज हैं और इन चारों अकेडमीज के अंदर अलग अलग वैकेंसीज रहती हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग कट ऑफ जाती है, एग्जाम एक ही होता है. जैसे आईएमए के अंदर देयर आर अराउंड 100 वैकेंसीज, सबसे ज्यादा. नेवल एकेडमी के अंदर देयर आर अराउंड 45 वैकेंसीज. एयरफोर्स एकेडमी के अंदर देयर आर 32 वैकेंसीज, ठीक है. एंड ओटीए के अंदर फॉर विमेन देयर आर 15 वैकेंसीज एंड फॉर मेन देयर आर 225 वैकेंसीज. सो सी, अगर आप मेन की, विमेन ऑब्वियसली फॉर अ गर्ल, फॉर अ लेडी, for a lady cadet or a candidate to join the forces, it's absolutely challenging and demanding. Okay, ladies have to put much more efforts than men, so it's very challenging and demanding for them, and many of them successfully sail through as well.
For men, there are multiple entries, first of all. Secondly, there are multiple vacancies. You can see 100 plus 45 plus 32 plus 225. There's so many vacancies. Okay, for men. Now we know about the exam. We know about the general knowledge portion. We know about the English portion. We know about the mathematics portion. Now, what should be our strategy? हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की? स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने के लिए हम इट्स इंपॉर्टेंट हमें पता लगे कि अराउंड अराउंड कट ऑफ कितनी जाती है ना, अराउंड कट ऑफ कितनी जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की कट ऑफ जो है, ठीक है, वो जाती है 130 चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा। ये मैम ज्यादा लेकर जाता हूँ ना, 130 ले लो, 135, यानी कि इफ यू आर क्रॉसिंग 140 तो आप आईएमए आईएनए सारा ही कर जाते हो, ठीक है। एयरफोर्स की यूजुअली थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जाती है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन द एयरफोर्स एकेडमी देन यू नीड टू एम एटलीस्ट 150, ठीक है। फिर आपको 150 मार्क्स जो है 300 में से, ठीक है, 150 मार्क्स जो है वो आपको एम जरूर आपको करने पड़ेंगे। यू हैव टू एम एट इट। ओके, सो अदरवाइज आप देखोगे तो 130 ओटीए की कम जाती है, बट ओटीए के अंदर ध्यान रखना, ओटीए के अंदर मैथ्स नहीं आता, तो इट्स आउट ऑफ 200। ये जो ओटीए है ना, ओटीए इज आउट ऑफ 200। तो मेन और वुमेन के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम आती है कट ऑफ, बट इट इज आउट ऑफ 200। दिस इज वन थिंग फॉर श्योर, दीज आर आउट ऑफ 300। ओके, सो दैट मीन्स कि अराउंड 50% से भी कम में ही काम चल जाता है, ठीक है। आपको 50% मार्क्स से भी कम मार्क्स में काम चल जाता है। और इसमें मैंने आपको बताया इंग्लिश में लोग जो है वो काफी आगे तक सॉल्व कराते हैं। इंग्लिश हो गया, ठीक है, सम पीपल आर गुड एट मैथमेटिक्स आल्सो। तो ये सारी चीजें। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि टारगेट रखो 150 का, क्योंकि अगर आप 150 का टारगेट रखकर चलते हैं तो आपका आईएमए एफ या आईएनए हो जाएगा। और अगर आप ओटीए वाले हो तो 85। सो 150 का टारगेट जो है वो जरूर रखकर चलो। 150 का मतलब है कि आपको इंग्लिश के अंदर 80-90 क्वेश्चंस के आसपास जाओ। मैथमेटिक्स के अंदर कोई 40 क्वेश्चंस देखो। जीके के अंदर कुछ 40-50 क्वेश्चंस जो है वो ढूंढो जिसका जवाब जो है वो आप दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है आपको तीनों एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आपने 100 के 100 सही कर दिए, 120 सही कर दिए, और मैथमेटिक्स में आपके सारे 15। ऐसा बड़े लोगों के साथ होता है। दे वांट टू गो टू आईएमए, बट मैथमेटिक्स के अंदर सारे 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, या फिर जो जीके के अंदर वीक है उसमें सारे 10 क्वेश्चन उनको मिलेंगे, या 15 मिलेंगे, या 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, 5 गलत कराएंगे। तो आपको मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 20% स्कोर करना है, यानी कि मिनिमम 25 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। या फिर कह लो अगर आपने 40 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें से 5 गलत हो जाए, 6 गलत हो जाए, और बाकी आपके सही होने चाहिए। मिनिमम या तो सीधे सीधे 25 क्वेश्चन सही करो, पर उसमें गलती होने के चांसेस है, या फिर 35 तो कम से कम अटेम्प्ट करो। मिनिमम 35 का अटेम्प्ट तो आपका होना चाहिए श्योर शॉट। तो जाके समझना कि सो मिनिमम 35 का अटेम्प्ट होना चाहिए श्योर शॉट, तो जाके समझना कि आपकी बात जो है वो आसपास बन रही है, ठीक है। सो ये बात भी याद रखना कि हर एक सब्जेक्ट में चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे आपको हिस्ट्री भी मास्टर करनी है, आपको पॉलिटी भी मास्टर करनी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, सब कुछ ही मास्टर करना, नहीं, ऐसा नहीं होता। द प्लान ऑलवेज इज कि कोई एक या दो सब्जेक्ट्स जो है, प्लान ऑलवेज इज दैट यू मास्टर वन सब्जेक्ट। वो जैसे इंग्लिश को मास्टर कर लो। आई हैव सीन पीपल 90 क्वेश्चंस इंग्लिश में अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उनका कितना काम तो इंग्लिश ने अकेली ने चला दिया, कितना काम तो उनकी अकेली इंग्लिश ने चला दिया। सो इंग्लिश, कईयों की जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, कईयों की साइंस बहुत अच्छी होती है, तो एक सब्जेक्ट जो है वो मास्टर करो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना, बट एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कईयों की ऐसी इंग्लिश नहीं स्ट्रांग हो पाती, वो जितना मर्जी जोर लगाए। तो फिर आप ऐसा करो, जीके आपके हाथ में, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मत सोचो कि बिना नथिंग इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। थिंग्स आर चैलेंजिंग, थिंग्स आर डिमांडिंग, कंपटीशन इज हाई, एंड द स्पिरिट्स नीड टू बी इक्वली हाई एज वेल। सो मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। इसीलिए लोग मैथ्स के से थोड़ा सा कई बार कतराते हैं, और मैथ्स में कोशिश करते हैं कि हमारी सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ्स के ऊपर भी काबू पा सकते हो, लाइक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और सम एमबीए गाइस हु आर गुड इन मैथमेटिक्स ऑलरेडी, देन इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट योर स्कोर, ठीक है। लेकिन मैथ्स के अंदर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने से भी देयर आर सम पीपल हु फाइंड इट क्वाइट
डिस्टर्बिंग कि वो इतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते समटाइम्स। ठीक है, इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग फॉर मेनी पीपल, सो ट्राई कि आपके लिए भी इंग्लिश स्कोरिंग हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर मारना है। कई लोग मैंने देखा इंग्लिश को तो कर जाएंगे, फिर कहेंगे क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज साइंस में आप पढ़े रह गए, मैथ्स में आप पढ़े रह गए। ठीक है, so hit the enemy at the weakest point. We in the forces always say that hit the enemy in the weakest point. Here the examiner is going to set a paper where he is trying to obstruct your path, where he is trying to stop you. आपको उसके वीक एरियाज को टारगेट करना है। वीक एरियाज यानी कि जो क्वेश्चंस के अंदर इजी पोर्शंस होंगे उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। इंग्लिश जो है वो इजी आती है, ऐसा ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश आसान थी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश को मास्टर। साइंस जो है वो उसी में से आती है जो आप पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ साइंस को मास्टर। पॉलिटी जो है वो प्रिडिक्टेबल आती है। लाइक अगर आप पॉलिटी मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये चीजें ऐसे ऐसे पढ़ोगे, उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, सो पॉलिटी पढ़ो। हिस्ट्री जैसे हो गई, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। हिस्ट्री अनप्रिडिक्टेबल, आपने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही थरोली पढ़ी, हम पढ़ाते जरूर हैं, बट अगेन क्वेश्चन वहां से आ जाता है जो चीज आपने नहीं पढ़ी, तो उसके ऊपर इतना टाइम पहले ना लगाया जाए। जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो प्रिडिक्टेबल है, जो पता है कि यहां से ही आएगा, उसको अपना स्ट्रॉन्ग करो। इट कुड बी साइंस, इट कुड बी इंडियन पॉलिटी, इट कुड बी some chapters of mathematics as well, such as percentage, such as average, such as statistics. ठीक है, सो साइंस हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गया, these are kind of easy areas. इंडियन पॉलिटी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बच्चे कहते हैं सर हम सारी जीके पढ़ जाते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू कैन नॉट स्टडी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर तो आप कौन बनेगा करोड़पति में जाओ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू कैन नॉट स्टडी इंटायर जीके, खत्म होने पे नहीं आएगी। सो लोग क्या करते हैं, वो पहले पेज से पॉलिटी शुरू कर देते हैं, वो चीजें भी पढ़ जाते हैं जो आने के चांसेस मिनिमल होते हैं। तो यू हैव टू स्टडी दोज थिंग्स इन फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि आपकी कॉस्ट बेनिफिट जिनका ज्यादा हो। आपको पता है मैं पढ़ूंगा और ये आने के भी चांसेस है, ना कि वो चीजें जो आने के चांस। सो पीपल विद वो मिडिवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ जाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं पढ़ना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, पॉलिटी भी पढ़ रहे होंगे, पेज 1 से स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट पेज। ठीक है, वो इतना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। सेकेंडली कट ऑफ 100% जाती नहीं है, 50% भी नहीं पहुंचती कट ऑफ। कट ऑफ डज नॉट इवन रीच 50%। ठीक है, आप देखोगे क्या कट ऑफ रही है, यू सी द कट ऑफ 110 गई, कभी 100 120 भी नहीं, यू नो। आप देखोगे ये वाली कट ऑफ अगर आप देखो तो बहुत ही कम कट ऑफ गई है, right? So first, you cannot study entire GK. Even if you meticulously study GK, you put all your efforts, you toil, you strive hard, you burn the midnight oil, then also you will be able to solve hardly 50% GK questions. So do not spend all your energy on GK because of its poor cost benefit. Moral outrage is not required. आवेश में आने की जरूरत है, मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। Make a strategy, list of important topics, उनको करो। ठीक है, वही चीजें जो है वो हम आपको अपनी कोचिंग के दौरान जो है वो करवाते हैं, है ना। वी टारगेट ओनली सच एरियाज, सो यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग, यू ओनली हैव टू नो इनफ। ठीक है, सिर्फ उतना जानना है जितना, एंड फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन। ठीक है, एक बार ठान लिया है तो करना तो है ही। ठीक है, देन यू शुड नॉट बी स्विंगिंग लाइक अ पेंडुलम बिटवीन यस और नो, करूं या ना करूं। ठीक है, आराम से सोचो, टेक योर टाइम, एक बार ठान लिया करना है तो सीडीएस इज अ वेरी इजी एग्जाम in comparison to multiple other exams. ठीक है, it's not very challenging also. You can see the cutoff, you can see the kind of questions there are, so it's not a very challenging exam. ठीक है, so with this the presentation comes to an end. I hope I have tried to cover as many aspects as I could. So if there are any other questions, you can definitely ask.